Welcome, dear learners. Welcome to the MOOC course of Pharmacology 3 BP 602T. I am Dr. Sardindu Kumar Mishra, Associate Professor at the Department of Pharmacology at Ramis Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. So, dear learners, in previous lecture we have covered over the chemotherapy of the malignancy, that is the cancer, and in first part we explored the about concept of cancer, what are the factors which are responsible to cause the cancer, and parallelly we discuss over the topic that what are the drugs which are categorized in the anti-cancer class. Parallelly, we have explored the toxicity associated with these chemotherapy or you can say chemotherapeutic agents, and we explore the first class and the most common class, that is the alkylating agent, and we discuss about the pharmacology of the cyclophosphamide. So, let us move to the second class, that is the antimetabolite. So, antimetabolite is the drug which can target the metabolism, as the name suggests, anti plus metabolism. जो मेटाबॉलिज्म को रोके, दैट इज नोन एज व्हाट, एंटी मेटाबॉलिज्म. एंड प्रीवियस लेक्चर वी कवर्ड द सल्फोनामाइड्स. तो सल्फोनामाइड क्या कर रहे थे, वो फोलिक एसिड जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड था उसको बनने नहीं दे रहे थे. सो दीज आर द एजेंट्स विच कैन ब्लॉक और यू कैन से सबवर्ट द metabolic pathway which is involved in the DNA synthesis. So, here the folic acid is the main culprit. So, folic acid को target करना वो नहीं बनना चाहिए, because अगर folic acid बनता है तो that will helpful for the synthesis of the different base pairs. So, starting with the first one, the folate antagonist. Okay. So, in folate antagonist we can cover the methotrexate. So, methotrexate is a very famous drug which is used in cancer, as well as it has a very potential role in the autoimmune disorders like rheumatoid arthritis or the psoriasis. Okay. So, the folates are very essential for the synthesis of the DNA. Okay. Especially we can specify, तो purine nucleotides जो हैं उनके synthesis के लिए the folic acid is required, and if we can impair this folic acid pathway, so the DNA synthesis or the thymidine synthesis will impaired, and this will lead to the डिस्ट्रप्शन ऑफ द सेल. ठीक है. तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एजेंट है जो कि डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को टारगेट करेगा, और डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज है जो कि डाईहाइड्रोफोलिक एसिड को कन्वर्ट करता था टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में. ठीक है. तो DFHRAs को यहाँ पर रोकना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दिस THFA इज द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द DNA. सो अब व्हाट इज द रोल ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलेट, अगर हम बात करें हाउ टेट्राहाइड्रोफोलेट इज एक्टिंग. सो इट इज वर्किंग एज ए एसेंशियल कोफैक्टर which consists of a methyl group, okay, or you can say which carries a methyl group, and this methyl group is very necessary for the transformation of the 2-oxyuridylate into 2-deoxythymidylate. ठीक है. यानी कि 2-oxyuridylate को ये कन्वर्ट कर देता है 2-deoxythymidylate में, एंड दिस इज रिक्वायर्ड प्रोडक्ट और प्री रिक्विजिट प्रोडक्ट बेटर टू से द प्रिकर्सर. ठीक है. विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द DNA. ठीक है. तो DUMP से DTMP को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड. ठीक है ना. तो ये जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है, अगर आपने इसको रोक दिया तो आपका काम जो है वो आसान हो जाए, क्योंकि टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड जो है वो कैरी कर रहा है मिथाइल ग्रुप विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्शन ऑन द conversion of the DUMP into the DTMP. Okay. So, this is the flow chart. It will be easy to remember this flow chart. So, folic acid we inhibit the डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज हेयर. ओके. यहाँ पर DHFRAs था, तो अगर आपने DHFRAs को रोक दिया तो DHFA नहीं बनेगा. THFA नहीं बनने से प्यूरिन और पिरिमिडीन जो बेस पेयर्स थे वो नहीं बनेंगे, एंड यू नो दैट एडेनिन, guanine and either cytosine, thymine and uracil are required for the synthesis of DNA and the RNA, and as these will not available, तो cell cycle जो है cell mitosis है that will be impaired. We talk about the pharmacokinetics of methotrexate. So, it is orally stable, the oral viability is very good, but अगर हम बात करें तो इसकी जो प्रोटीन बाइंडिंग है दैट इज लेस, 50% है. ठीक है. तो ये मतलब ज़्यादा बाइंड नहीं करता है प्रोटीन के साथ. सो इसकी हाफ लाइफ जो है दैट इज ऑल्सो वेरी
less. Okay, now it is excreted through the urine in unchanged form, it is not metabolized. ठीक है, साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें तो साइड इफेक्ट्स जो कि आपको कॉमनली सब में देखने को मिलेंगे, जैसे बोन मैरो डिप्रेशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज द माइलोसप्रेशन. पैरेलली वी गॉट स्टोमेटाइटिस, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया एंड hepatotoxicity. So these are the side effects which are very common with the use of the methotrexate. Uses की बात करें तो ALL, that is acute lymphoblastic leukemia, जिसको हम शॉर्ट में ALL कहते हैं. ठीक है, ये दो तरह का ल्यूकेमिया होता है, एक होता है ALL acute lymphoblastic leukemia, ठीक है, और दूसरा होता है AML. ठीक है, ये हो गया एक्यूट मायोब्लास्टिक ल्यूकेमिया. ठीक है ना, तो ये दो तरह के अलग अलग टाइप के कैंसर्स होते हैं. तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में इट इज़ वेरी गुड ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा. नॉन हॉजकिन और हॉजकिन लिम्फोमा का डिफरेंस हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था. इफ रेड स्टेनबर्ग सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, तो इट इज़ व्हाट, हॉजकिन लिम्फोमा, और अगर ये एब्सेंट है तो इट इज़ व्हाट, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा. ठीक है जी, चलो, इट इज़ वेरी गुड फॉर द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियासिस एंड द IBD. दैट इज द IBD का फुल फॉर्म है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और IBD का मतलब इरिटेबल बाउल डिजीज. ठीक है, सो कुछ स्पेसिफिक एंटी मेटाबोलाइट्स की बात कर लेते हैं. पहला हमने फोलेट एंटागोनिस्ट की बात की थी, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था मेथोट्रेक्सेट. लेट्स मूव टू द प्यूरिन एंटागोनिस्ट. अब हम बात करेंगे जो स्पेसिफिक प्यूरिन बेसिस के ऊपर टारगेट कर रहे हैं. सो हियर द एग्जांपल इज 6-mercaptopurine, and what it will do, it will inhibit the certain enzymes which are required for the synthesis of the purine. ठीक है, अब कौन से वो एंजाइम्स हैं जो इन्वॉल्व हो रहे थे. ठीक है, तो ये बेसिकली वो एंजाइम्स थे जो कि जिनको हम पॉलीमरेज क्लास में रखते हैं. ठीक है, और ये जो एंजाइम्स हैं इनकी कैपेबिलिटी क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टी होती है टू हेल्प द सिंथेसिस ऑफ DNA. ठीक है, पैरेलली दे आल्सो फॉर्म अ मेटाबोलाइट जो 6-mercaptopurine है. ये एक मेटाबोलाइट बनाता है 6-methyl-mercaptopuric राइबोटाइड. ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में MMPR कहते हैं. एंड दिस इज हैविंग अ गुड एंटी कैंसर प्रॉपर्टी और साइटोटॉक्सिक प्रॉपर्टी. सो अगर आप कहें तो 6-mercaptopurine मेटाबोलाइज होता है और वो बनाता है MMPR, एंड दिस MMPR, दिस मेटाबोलाइट हैज अ साइटोटॉक्सिक प्रॉपर्टी. नाउ फ्लुड्राबिन इज आल्सो अ क्लास ऑफ ड्रग. ठीक है, यहाँ पर इसका फॉस्फोराइलेशन होगा पहले. ठीक, यहाँ ये जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, दिस फॉस्फोराइलेशन कन्वर्ट इनटू द मतलब 3 बार फॉस्फोराइलेशन मोनो डाई एंड लास्टली इट विल कन्वर्ट इनटू ट्राइफॉस्फेट, एंड दिस ट्राइफॉस्फेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द व्हाट, द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द फ्लुड्राबिन. ठीक है ना, ये क्या करेगा, DNA आइसोमरेज को DNA पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देगा, और DNA पॉलीमरेज को इनहिबिट करने की वजह से जो DNA सिंथेसिस है दैट विल बी इम्पेयर्ड. पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट की बात करें तो वी हैव 5-fluorouracil. द सेम यहाँ पर भी इसका फॉस्फोराइलेशन जो प्रोसेस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉस्फोराइलेशन होगा, ट्राइफॉस्फेट बनेगा, तभी ये अपना अच्छे से काम कर पाता है. ठीक है, अब होता क्या है, जनरली 5-fluorouracil जो है वो थाइमिडाइलेट सिंथेटेज को टारगेट करेगा. ठीक है, वहाँ पर वो पॉलीमरेज था, यहाँ पर थाइमिडाइलेट सिंथेटेज है जो थाइमिडीन को बनाएगा. दैट इज नोन एज व्हाट, थाइमिडाइलेट सिंथेटेज. ठीक है, जो थाइमिडीन को बना रहा है. थाइमिडीन इज वन ऑफ द बेस पेयर. कौन सा बेस पेयर, पिरिमिडीन बेस पेयर है. ठीक है ना, तो ये जैसे ही थाइमिडाइलेट सिंथेटेज इनहिबिट होगा, थाइमिडीन नहीं बनेगा, और थाइमिडीन नहीं बनने की वजह से, क्योंकि जनरली DNA अगर आप देखोगे तो उसके अंदर A और T का बाइंडिंग होता है और G और C की बाइंडिंग होती है. अब T नहीं बनेगा तो A की बाइंडिंग नहीं होगी, तो अल्टीमेटली DNA जो है वो नहीं बनेगा. ठीक है, इसके अलावा एक और ड्रग है सेट्राबिन, दैट इज पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट, बट इट टारगेट्स द DNA पॉलीमरेज. ये क्या किसको टारगेट करता है, DNA पॉलीमरेज को टारगेट करता है. नाउ लेट्स मूव टू द साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक्स. सो ये पर्टिकुलरली एंटीबायोटिक्स हैं जो कि नेचुरल सोर्स से हमको मिलते हैं. ठीक है, अब इनका सिंथेटिक प्रोडक्शन होने लग गया है, एंड दे हैव अ वेरी गुड पोटेंशियल टू kill the cells, especially the cancerous cells. ठीक है, so what they can do, generally they have a direct action on the DNA. ठीक है, ये DNA के साथ इंटरकलेट होंगे, मैं अभी आगे आपको मैकेनिज्म बताऊंगा. ठीक है, एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है कि कभी भी हम एंटीबायोटिक को रेडियोथेरेपी के साथ नहीं देते हैं, बिकॉज एक तो एंटीबायोटिक जो है वो हमारे सप्रेस कर रहा है, और साथ में रेडियोथेरेपी वो भी हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस कर रहा होता है, तो इसकी वजह से टॉक्सिसिटी जो है वो बढ़ने के चांसेस होते हैं. ठीक है, अननेसेसरी सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, डॉक्सोरिबिसिन की बात करें तो अब यहाँ पर कुछ इंटरकलेशन होगा, मतलब कि
ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। तो यहां पर ये बेस पेयर्स हैं, ठीक है। ये जो बेस पेयर्स हैं इनके बीच में हमारा एंटीबायोटिक जो होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक कर देगा, ठीक है ना, उन बेस पेयर्स के बीच में आकर बाइंड कर जाएगा। अब जब ये बाइंड कर गया तो इसकी बाइंडिंग की वजह से जो डीएनए है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो खत्म हो जाएगी, मतलब रेप्लिकेशन में आगे प्रोसेस ही नहीं बढ़ेगा, ठीक है। सो डॉक्सोरिबोसिन इज द वन एंटीबायोटिक वेरी फेमसली यूज्ड फॉर द एंटी कैंसर थेरेपी, ठीक है। व्हाट इट कैन डू, इट कैन गेट इन साइड ऑफ द डीएनए, ठीक है, एंड इनहिबिट द टोपोआइसोमेरेज 2, ठीक है। अब टोपोआइसोमेरेज 2 मेरे ख्याल से अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो जब हमने फ्लोरोक्विनोलोन्स पढ़ा था तो उस टाइम पे अभी क्या एक वर्ड आया था, टोपोआइसोमेरेज आया था, एंड टोपोआइसोमेरेज 2 इज आल्सो नोन एज डीएनए गायरेज, ठीक है। और डीएनए गायरेज किस लिए था, अगर याद करो तो जो सुपर कॉइलिंग होती थी उसको ओपन करने के लिए था, मतलब जो डीएनए का स्ट्रैंड डीएनए के स्ट्रैंड पकड़ लो आप, और इन दोनों को अलग करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होगा दैट इज व्हाट, द टोपोआइसोमेरेज 2 और डीएनए गायरेज, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, डीएनए गायरेज को इनहिबिट कर दे रहा है। डीएनए गायरेज को इनहिबिट करने से अनकॉइलिंग नहीं होगी, अनकॉइलिंग नहीं होगी तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, द रेप्लिकेशन विल बी इम्पेयर्ड, अल्टीमेटली द डीएनए विल नॉट फॉर्म एंड लेटर ऑन द ट्रांसक्रिप्शन विल बी इम्पेयर्ड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे हो रहा है। तो डॉक्सोरिबोसिन जो है वो मैंने जो आपको डायग्राम में पहले दिखाया था, ये दोनों बेस पेयर के साथ इंटरकलेट हो गया, और इंटरकलेशन की वजह से अब ये डीएनए आगे सिंथेसाइज नहीं होगा, रेप्लिकेशन नहीं होने देगा, ठीक है। डैक्टिनोमाइसिन इज अनदर एंटीबायोटिक, इट ऑल्सो इंटरकलेट विद द डीएनए, बट यहाँ पर ये जो इंटरकलेशन करेगा वो करेगा जी और सी के बीच में, ठीक है ना। तो जो जी सी बेस पेयर है उनके बीच में घुसेगा, और वहाँ एंटर करने के बाद इट विल इंटरफेयर द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। वहाँ पर डीएनए गायरेज था डॉक्सोरिबोसिन में, याद रखेंगे, और यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, उनके साथ इंटरकलेशन होगा, उसकी एक्टिविटी को इंपेयर करेगा, एंड दिस विल लीड टू द प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मतलब अब डीएनए से जो आरएनए बन रहा था, ठीक है ना, दैट इज नोन एज व्हाट, ट्रांसक्रिप्शन, और यहां पर जो एंजाइम था वो कौन था, डीएनए पॉलीमरेज। तो अब डीएनए पॉलीमरेज को उसने इंटरकलेट करके ब्लॉक कर दिया, तो इसकी वजह से आरएनए नहीं बनेगा और अल्टीमेटली प्रोटीन सिंथेसिस विल इम्पेयर्ड, ठीक है। नाउ it also have a topoisomerase 2 activity, that means it also intercalate with the gyrase 2 DNA gyrase. Bleomycin is a glycopeptide antibiotic which having a chelating property, ठीक है, and it will degrade the DNA, okay. Now what it can do, it can form a complex chelate along with the iron Fe2+, और ये जो चिलेट है जब ब्लियोमाइसिन के साथ जुड़ता है तो इट विल फॉर्म द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स लाइक सुपर ऑक्साइड्स, और जो सुपर ऑक्साइड्स बनेंगे दिस सुपर ऑक्साइड विल डैमेज द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है दैट इज वेरी रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए व्हाट, इंटीग्रिटी, ठीक है ना, डीएनए को इंटैक्ट रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब ये टूट गया तो अल्टीमेटली क्या होगा, सारे बेस पेयर्स आज़ाद हो जाएंगे और डीएनए जो है वो रप्चर हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज़, यू कैन से दैट इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर द G2 फेज, ठीक है, जहाँ पर आपका फाइनली डॉटर सेल जो है वो उसमें हो रहे थे, ठीक है ना। सो यहाँ पर अगर हम कहें तो नॉन डिवाइडिंग सेल्स के ऊपर ये ज़्यादा अच्छा काम करता है। दिस इज अ डायग्राम विच इज इंडिकेटिंग दैट हाउ bleomycin is integrated with the Fe2+, this will form a chelate, and this chelate will intercalate with the what, the DNA, it will degrade the DNA, और एक बार DNA डिग्रेड हुआ तो आगे की जो ट्रांसक्रिप्शन है या सिंथेसिस है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएंगी, हैम्पर हो जाएंगी। प्लांट डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें तो वी हैव सम नेचुरल सोर्सेज फ्रॉम द एंटी कैंसर एजेंट्स फ्रॉम द नेचुरल सोर्स लाइक पेरीरिंकल। पेरीरिंकल जो है वो एक सदाबहार का फूल जो होता है दैट इज़ वेरी गुड रिसोर्स फॉर द एंटी कैंसर, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 अल्कलॉइड्स। ऐसे तो 3 है बट मैं 2 ही बता रहा हूँ आपको, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। तीसरा जो है वो क्या है, विनडेसिन। एक और है विनोरेल्बिन। तो 4 हो गए, ठीक है, तो 4 याद रख सकते हैं, बट मेजर वी कैन टॉक अबाउट द विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, ठीक है जी। तो कहाँ से मिला, पेरीरिंकल। व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ द पेरीरिंकल, मेडागास्कर पेरीरिंकल, ठीक है। एंड what the chemical nature of this, the alkaloid है। what it can do, it can bind with the tubulin। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ बाइंड करता है, ठीक है। हमारे पास
डायग्राम है, ओके ठीक है। सो व्हाट इट कैन डू, इट कैन बाइंड विद द माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। और जब माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो एक सेल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, एक उसको शेप देते हैं, ठीक है, आप ऐसा समझ लो, जो सेल का ढांचा है उसको डिफाइन करने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल चाहिए, ठीक है। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल के साथ बाइंड कर जाते हैं और बाइंड करने के बाद ये उसका सेल का जो स्ट्रक्चर देने का है उनका प्रोसेस, उसको हैम्पर कर देते हैं, ठीक है। और जब सेल को वो स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। दिस इज अ डायग्राम, दिस इज द नॉर्मल माइटोसिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉटर सेल बन रहा है मदर सेल से और उसके बाद ट्यूबुलिन उसको एक स्ट्रक्चर दे रहा है और अल्टीमेटली यहाँ पर एक सेल और दूसरा एक डॉटर सेल, इस तरह का सेल बन जा रहा है, ठीक है। बट अगर आप देखेंगे विनकाल कोलाइड के केस में तो माइटोसिस ब्लॉक हो गया। क्यों ब्लॉक हो गया? क्योंकि यहाँ पर जो एनाफेज होना था, जहाँ पर मदर और डॉटर सेल अलग होने थे या दो डॉटर सेल अलग होने थे, ठीक है ना, वो उसने रोक दिया। क्यों? क्योंकि स्पिंडल फॉर्मेशन जो है ब्रेक डाउन हो गया और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? ट्यूबुलिन बाइंडिंग, ठीक है ना, किसकी? विनकाल कोलाइड की, ठीक है। तो यहाँ पर जो डॉटर सेल और मदर सेल है वो अलग नहीं हो पाएंगे। टैक्सेंस आर द अनदर नेचुरल अल्कलॉइड्स व्हिच आर डेराइव्ड फ्रॉम द यू ट्री एंड द बायोलॉजिकल सोर्स इज टैक्सस ब्रेविफोलिया, ठीक है। नाउ दे have also a tendency to block the they can have a tendency to bind with the microtubules, and what they can do, they can stabilize or better to say freeze the microtubules, and once the microtubules freezed, ठीक है ना, एक बार वो रुक गए तो अल्टीमेटली फिर वही सेम बात है, माइटोसिस नहीं होगा, यानी कि दो मदर सेल से दो डॉटर सेल नहीं बनेंगे और नहीं बनने की वजह से जो नंबर ऑफ सेल का जो, क्योंकि अल्टीमेटली कैंसर में हो क्या रहा था, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, ज़्यादा सेल्स बनने लग रहे थे। तो जब आपने स्पिंडल ब्लॉक कर दिया, ट्यूबुलिन प्रोटीन को ब्लॉक कर दिया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, एनाफेज नहीं होगा और एनाफेज नहीं होने से दोनों डॉटर सेल अलग नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली इट विल अरेस्ट द माइटोसिस। कुछ हॉर्मोन्स हैं, they are very involved in the you can say treatment of cancer, especially those cancer which are associated with the imbalance in the hormones, ठीक है ना, जैसे एस्ट्रोजन हो गया, ठीक है। तो एस्ट्रोजन का इम्बैलेंस की वजह से ज़्यादा कैंसर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। नाउ हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर्स की अगर हम बात करें तो जब आपने पहले पढ़ा होगा तो GPCR एक मैकेनिज्म पढ़ा होगा आपने, जहाँ पर कि न्यूक्लियर रिसेप्टर के थ्रू वो लोग काम करते हैं, ठीक है। और ठीक है, वो मैकेनिज्म पूरा तो हम यहाँ नहीं डिस्कस कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग एंड इट विल टेक वन क्लास मोर, ठीक है। सो व्हाट दे कैन डू, दे कैन बाइंड विद द स्टेरॉइड रिसेप्टर एंड वंस दे कैन बाइंड विद द स्टेरॉइड रिसेप्टर ना, दे यू कैन से इनहिबिट द डाइमराइजेशन, डाइमराइजेशन नहीं होने देते हैं, और वो जो डाइमराइजेशन है दिस विल बी हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन्स नहीं बनेंगे तो अल्टीमेटली, अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो व्हाट दे कैन डू, दे आर रिक्वायर्ड फॉर द inhibition of the you can say the different metabolic processes like which is required for the hormone synthesis, ठीक है। अब ज़्यादा hormones नहीं बनेंगे तो उसकी वजह से जो उनकी माल फंक्शनिंग थी that will be impaired, ठीक है, वो नहीं होगी, ठीक है। नाउ कभी कभी हम एंटागोनिस्ट भी यूज़ करते हैं, जैसे अगर हम बात करें एस्ट्रोजन का तो इसके अगेंस्ट हमको एक एंटागोनिस्ट यूज़ करेंगे, टैमॉक्सिफेन हम यूज़ करते हैं, जो दैट इज़ अ वेरी गुड ड्रग फॉर द ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। Parallelly, we have some glucocorticoids like prednisolone or dexamethasone which have a good inhibitory property on the lymphocyte proliferation, ठीक है। और lymphocyte proliferation जो है वो लिम्फोमाज में देखने को बहुत मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लिम्फोसाइट का जो प्रोलिफरेशन है उसको इम्पेयर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड इट विल टेकन केयर बाय द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लाइक प्रेडनिसोलोन एंड द डेक्सामेथासोन, ठीक है। नाउ These drugs are very helpful for the treatment of, मैंने पहले बता दिया, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा, क्योंकि इनमें जो ल्यूकोसाइट्स हैं या जो लिम्फोमाज हैं ना, उनका नंबर ना बहुत ही ना इनवेरिएबली चेंज होने लगता है, ठीक है ना। तो वो अनएक्सपेक्टेड होता है, तो उसके प्रोलिफरेशन को ये रोकना शुरू कर देता है। एस्ट्रोजन की बात कर लेते हैं, दिस इज अ फीमेल हार्मोन, ठीक है, मेल्स में भी मिलता है बट डोमिनेंटली इट इज़ अवेलेबल इन द एस्ट्रोजन फीमेल्स, ठीक है। अगर बात करें तो दो एनालॉग्स हैं इसके, डाइथाइलस्टिबिस्टेरॉल एंड इथेनाइल ऑस्ट्राडायोल, ठीक है ना। दे हैव अ क्लिनिकल यूजेस, ठीक है, स्पेशली किस तरह के कैंसर में, प्रोस्टेटिक कैंसर में या प्रोस्टेटिक ट्यूमर में, जहाँ पर एंड्रोजन टेस्टोस्टेरॉन की वजह से प्रोस्टेट कैंसर हो रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पर ये यूज़ किए जाते हैं। नाउ धीरे धीरे अब अगर हम बात करें तो
इनको रिप्लेस करके कुछ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स आ गए हैं, गोनोरेलिन, नेफ्रेलिन, इस तरह के ड्रग्स आ गए हैं जो कि थोड़े साइड इफेक्ट्स के साथ ज़्यादा थेरेपेटिक विंडो का में काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब हुआ क्या, एस्ट्रोजन ने इनहिबिट कर दिया प्रोस्टेटिक टिश्यू के ग्रोथ को, ठीक है, और इसके ग्रोथ को इनहिबिट करने के पीछे जो मैकेनिज्म था दैट इज द ब्लॉकिंग ऑफ द एलएच प्रोडक्शन, ठीक है ना। एलएच का मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस होगा, वो नहीं प्रोड्यूस होगा तो अल्टीमेटली जो टेस्टोस्टेरोन बन रहा था टेस्टिस में, ड्यू टू द वो किसके इन्फ्लुएंस में बन रहा था, एलएच के इन्फ्लुएंस में बन रहा था, ठीक है। तो एक बार इसको चार्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है। एलएच है पिट्यूटरी ग्लैंड में, दिस विल इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब हमारा जो एस्ट्रोजन है वो क्या करेगा, वो पिट्यूटरी ग्लैंड में एलएच को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। एलएच के सिंथेसिस, एलएच को नहीं निकलने देगा, और जब एलएच नहीं निकलेगा तो अल्टीमेटली पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सिग्नल्स आने हैं किसको, आपके टेस्टिस को, ठीक है, जो कि टेस्टोस्टेरोन बना रहा था, उसको वो सिग्नल्स नहीं मिलेंगे एंड दिस विल लीड टू द व्हाट, द रिडक्शन इन द प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन मैंने पहले बताया, GnRH, नाउ दे आर द चॉइस ऑफ ड्रग बिकॉज दे हैव अ कैपेसिटी टू ब्लॉक द गोनेडोट्रोपिन, ठीक है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोनेडोट्रोपिन, सो दीज गोनेडोट्रोपिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स, सेक्सुअल हार्मोन्स, ठीक है ना, आइदर इट इज टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है। नाउ दे हैव अ वेरी गुड पोटेंशियल अगेंस्ट द breast cancer, they can used in the treatment of breast cancer especially in the premenopausal women, यानी जो जिनको मेनोपॉज, क्योंकि मेनोपॉज जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि जनरली फीमेल्स में देखने को मिलता है एट द एज और मोर देन एज ऑफ 45, ठीक है ना, जिसमें कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो बंद हो जाती है, ठीक है ना। अब जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद होती है तो यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है वो अपना कोई फिजियोलॉजिकल एक्शन नहीं कर रहा होता है, ठीक है ना। बट कभी कभी ये फिनोमिना प्री मेनोपॉजल कंडीशन में भी देखने को मिलता है, मतलब कि आप कह लो कि 40 के अंदर ही लोगों को ब्रेस्ट कैंसर होने लग जाते हैं, और दैट इज ड्यू टू द व्हाट, द imbalance in the hormones, ठीक है। and sometimes they also helpful for the treatment of the prostate cancer. Now what are the natural analogs of the GnRH inhibitors, तो मैंने नाम पहले बताया आपको, गोसेरेलिन, ठीक है, आप याद रख सकते हो, गोसेरेलिन इज द नेचुरल इनहिबिटर एनालॉग, GnRH इनहिबिटर एनालॉग, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें तो कुछ हार्मोन एंटागोनिस्ट भी हैं, जैसे टैमॉक्सीफेन जो कि एस्ट्रोजन का एंटागोनिस्ट है, और फ्लूटामाइड या बैक्लूटामाइड जो है दैट इज द एंड्रोजन एंटागोनिस्ट, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, क्योंकि मैंने पहले बताया था एस्ट्रोजन जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, हार्मोन है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर की पैथोफिजियोलॉजी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर उसको ब्लॉक करना बहुत जरूरी है, किसको, एस्ट्रोजन को, ठीक है। फॉर दैट वी नीड सम एंटागोनिस्ट एंड द एंटागोनिस्ट इज टैमॉक्सीफेन। पैरेलली कुछ और भी एजेंट्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जिनको हम कहते हैं SERMs, ठीक है। तो ये जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हैं ना, उसको ये क्या करता है, मॉड्यूलेट कर देता है। SERM सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ठीक है ना। तो ये मॉड्यूलेशन कर देते हैं, और उस मॉड्यूलेशन से जो एस्ट्रोजन की बाइंडिंग है वो नहीं हो पाती है, ठीक है। अब टैमॉक्सीफेन कंपीट करेगा एस्ट्रोजन से, और करने के बाद बाइंड कर जाएगा किसके साथ, OR के साथ, दैट इज द एस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ। अब जो ER के साथ ये बाइंड कर गया, जिसको हम OR भी कह रहे हैं, तो यहाँ ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का थोड़ा डिफरेंस है स्पेलिंग में, तो प्लीज़ डू नॉट गेट कंफ्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर ER के साथ वो बाइंड कर जाएगा, और वो बाइंड करने के बाद जो प्रोलिफरेशन कर रहा था, कौन, एस्ट्रोजन, ठीक है ना, क्योंकि एस्ट्रोजन के इफेक्ट में ही मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ होती है, ठीक है। तो अगर एस्ट्रोजन नहीं तो मेमोरी ग्लैंड में एक्सेसिव सेल ग्रोथ नहीं, ठीक है, और ये एक्सेसिव सेल ग्रोथ नहीं होगी तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस भी ना के बराबर हैं, ठीक है जी। तो आपको ध्यान रखना है कि एंटी एस्ट्रोजन और SERM हैव अ पोटेंशियल टू इनहिबिट द ब्रेस्ट कैंसर। एंटी एंड्रोजन में फ्लूटामाइड, बैक्लूटामाइड सेम वैसे ही काम करेंगे, दे कैन हेल्पफुल फॉर द प्रोस्टेट कैंसर, दे कैन कंट्रोल द फ्लेयर जनरली विच इज सीन इन द patient who are on the gonadotropin inhibitors like goserelin, ठीक है ना। प्लेटिनम कंपाउंड्स की बात कर लें, नाउ cisplatin is the example, they are the non cell specific drug, non cell cycle specific drug, मतलब सेल साइकिल पे इसका कोई मेजर रोल नहीं है, ये रेस्टिंग जो सेल्स है उन पे भी काम करता है। इट एक्ट्स बाय फॉर्मिंग द कार्बोनियम आयन, ठीक है ना। यहाँ पर ये
एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा चिलेट की तरह, ठीक है, और वो जो है वो एक सुपर ऑक्साइड या फ्री रेडिकल की तरह फॉर्मेशन करेगा जो कि डीएनए को डैमेज कर देगा। अगर हम बात करें तो सिस्प्लैटिन इज द ड्रग विच हैव अ वेरी गुड प्लाज्मा बाइंडिंग एंड जनरली इज एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन। इमेटोजेनिक है, यानी नोजिया वोमिटिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, नेफ्रोटॉक्सिक है और ऑटोटॉक्सिक है। जनरली द यूज ऑफ platinum compounds is seen in the ovarian cancer as well as in the testicular cancer. Monoclonal antibodies की अगर हम बात करें तो monoclonal antibodies जो हैं now they are the type of immunoglobulins, ठीक है, ये immune cells हैं, ठीक है, and they are produced by the hybridoma technology, ठीक है। hybridoma technology एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम चूहे के अंदर हमारा कोई रिक्वेसिट प्रोटीन डालते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो कि ये, ठीक है, चूहा है, ठीक है, इसके अंदर हमारी जो भी एक रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो डाल देते हैं, ठीक है, और वो प्रोटीन का प्रोडक्शन जो है वो हाई लेवल में होने लग जाता है, ठीक है, और फिर उस प्रोटीन को निकाल के हम ड्रग बना लेते हैं, ठीक है। नाउ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जिसको शॉर्ट में हम मैप भी कहते हैं, ठीक है, इनकी एक तरीका याद करने का कि इनके नाम के पीछे MAB लगना तय है, ठीक है, मैप देखने को मिलेगा। सो व्हाट दे कैन डू, दे कैन बाइंड विद द रिसेप्टर, ठीक है, एंड दे स्टिमुलेट द होस्ट इम्यून मैकेनिज्म, ठीक है, होस्ट इम्यून मैकेनिज्म को स्टिमुलेट करेंगे और इसकी वजह से जो होस्ट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ है वो क्या करेगा, कैंसर सेल को किल करने लग जाएगा, ठीक है, और कैंसर सेल को किल करने के लिए कुछ स्पेसिफिक किलर सेल्स भी होंगे जिनको NK सेल्स हम कहते हैं। नाउ पैरेलली दे कैन ऑल्सो इनएक्टिवेट द ग्रोथ फैक्टर, IGF को ये इनहिबिट कर देगा, ठीक है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इसको इनहिबिट करना बहुत जरूरी है बिकॉज ये एक्टिवेट हो गया था जब मैलिग्नेंसी होने लग गई थी, ठीक है, और एपोप्टोसिस को ये बढ़ा देगा, ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। नाउ रिटॉक्सीमेब एंड एलिट्सुमेब जो है दैट इज द एग्जांपल ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। आप देख सकते हो नाम में सफिक्स है मैब, ठीक है, तो याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। रिटॉक्सीमेब जो है दैट इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन द लिम्फोमास, स्पेशली आप अगर अब बात करें तो ये कॉम्बिनेशन में यूज़ करने वाले ड्रग हैं, सिर्फ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हम नहीं चलाते हैं, ठीक है। नाउ बी लिम्फोसाइट्स ये काम कैसे करता है, तो जनरली ये आप कह सकते हो कि ये बी लिम्फोसाइट्स को ब्रेक डाउन करेगा और ब्रेक डाउन करके उसको CD20 जो प्रोटीन है ना, उसके कॉम्प्लीमेंट फैक्टर को एक्टिवेट कर देगा एंड दिस विल सेंसिटाइज द रेजिस्टेंट सेल टू द कीमोथेरेपेटिक ड्रग, यानी जो कैंसर सेल जो रेजिस्टेंट हो चुके थे कीमोथेरेपेटिक से उनका सेंसिटाइजेशन हो जाएगा और फिर वो उनकी किलिंग होने लग जाएगी। एल्टुजुमैब जो है दैट इज ऑल्सो एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विच विल यू कैन से लाइज द बी लिम्फोसाइट्स एंड दे आर वेरी गुड फॉर द CLL, ठीक है, क्रोनिक आप कह सकते हो ल्यूकोसाइटिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ठीक है। नाउ मिसलेनियस एजेंट्स में अगर हम बात करें तो वी हैव अ एग्जांपल ऑफ क्रिस्टेप्नेज, ये एक एंजाइम है जो कि जनरली आप कह सकते हो कि एस्परजिनेज का एनालॉग है, ठीक है, एस्परजिनेज से बना हुआ है। व्हाट इट कैन डू, इट कैन ब्रेक डाउन द एस्परजिन टू एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, इसका नाम है क्रिस्टेप्नेज जो है, इट कैन व्हाट इट कैन डू, इट कैन ब्रेक डाउन द एस्परजिन टू द एस्पार्टिक एसिड and ammonia. Now they are active against the tumor cell. What they can do, they can inhibit the lymphoblastic cells, ठीक है ना, ये lymphoblastic cells को inhibit कर देते हैं। Now they are a drug which can be depending on the choice, ठीक है, इसको हम selective conditions में ही चलाते हैं। So this is all about the chemotherapy of malignancy. Thank you for your patience listening.